الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں دیکھو جب تمہارے دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا تو ایک سیکنڈ بھی کوئی شخص تمہارے اس جانے کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ جس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تیری زندگی کی سانس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو ہزار طاقت اور قوت تم لگانا چاہو، ہزار تم سوچ لگانا چاہو اور یہ چاہو کہ ہماری موت کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، اور آپ چھوٹے موٹے بادشاہ نہیں ہیں، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ آپ کی بادشاہت پورے دنیا پر تھی اور آپ کی حکومت ہواؤں پر تھی، جانوروں پر تھی، چرندوں پرند سب پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، آپ کے جانے کا وقت آیا، آپ کا آخری وقت آیا تو ملک الموت آئے آپ کی روح قبض کرنے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے کہہ دو کہ سلیمان بیت المقدس کی تعمیر کرا رہا ہے، کوئی مہلت مل جائے تاکہ یہ تعمیری کام پورا ہو جائے۔ تو ملک الموت اللہ کے پاس گئے کہ آپ کا بندہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا اور جا کر کے کہا کہ جا کے میرے بندے سے کہہ دو کہ بیت المقدس کی تعمیر کا بہانہ نہ بنائے، بیت المقدس کی تعمیر کا بہانہ نہ بنائے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا تو میرے دوستوں ذرہ برابر بھی اس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایک پیغمبر ہے، بادشاہ ہیں، اور چھوٹے موٹے نہیں، بہت بڑے بادشاہ، بڑے پیغمبر ہیں، لیکن ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب جا کے میرے بندے سے کہہ دو کہ بیت المقدس کی تعمیر کا بہانہ نہ بنائے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں، ایک حدیث میں آپ کو سناؤں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ یہ بتائیے کہ بیمار شخص کب دنیا کی ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اپنے اور پرائے کو کب بھول جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بیمار شخص ملک الموت کو دیکھتا ہے اور موت کا فرشتہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ شخص اپنے اور پرائے سب کو بھول جاتا ہے، اس کے نظر سے سب کے سب اوجھل ہو جاتے ہیں، سب غائب ہو جاتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب ملک الموت کو انسان دیکھتا ہے تو انسان ملک الموت کو دیکھ کر کے دنیا کو فراموش کر دیتا ہے، اور جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو انسان کی قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آتا ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انسان اتنا گھبراتا ہے اور اتنی بے چینی محسوس کرتا ہے کہ
कि अगर उसको ये बेखबरी ना हो तो जो अगल बगल में लोग बैठे हैं उनसे तलवार लेकर के मुकाबला करना शुरू कर दें। यही वजह है, आपने देखा होगा जब इंसान मरता है और इंसान की रूह निकलती है तो पाँव की तरफ से निकलती है, हल्का हल्का उसका पाँव धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है। शायद इसके अंदर यही मसलियत है और ये राज है कि मरने वाला कहीं बेचैनी की वजह से उठ करके भागने न पाए। इतनी तकलीफ होती है, इतनी बेचैनी होती है इंसान के मौत के बाद। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, हम सबको मौत की फिक्र करके इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह के ऐसे ऐसे बंदे गुजरे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, क्या सुनाऊं। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार, शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। आपकी ज़िंदगी में अजीब इनकलाब आया है। आपके बारे में आता है कि आप अपने वालिद साहब के साथ अत्तारी की दुकान पर रहा करते थे। आपने इल्म तिब को भी हासिल किया और सैकड़ों मरीज़ रोज़ाना आते थे आपके यहाँ। सैकड़ों मरीज़ों का आप इलाज किया करते थे, उनका मुआलिजा फरमाया करते थे। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया, एक ऐसा वक्त भी आया कि हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार एक मर्तबा अपने अत्तारी की दुकान में काम में लगे हुए थे, पैसों को उलट पलट रहे थे। एक मांगने वाला फ़कीर आया, एक मांगने वाला आकर के आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, आपके दुकान पे खड़ा होता है और कहता है उस फरीदुद्दीन अत्तार से कि बताओ, तुम इतने शीशियों में उलझे हुए हो और तुम्हारा दिल इस अंदर लगा हुआ है, इस दुकानदारी के अंदर तुम फंसे हुए हो, तुम्हारी रूह कैसे निकलेगी? वो फकीर अल्लाह वाला कहता है कि तुम इतने पैसों में उलट फेर में लगे हुए हो, तुम्हारी रूह कैसे निकलेगी? तुम दुनिया से कैसे जाओगे? तो फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा कि जैसे तेरी रूह निकलेगी वैसे हमारी रूह निकलेगी, जैसे दुनिया से तुम जाओगे वैसे दुनिया से मैं चला जाऊंगा। तो फकीर जो आया था हाथ में कशकोल लिए हुए था, जिसके अंदर मांगा करता था, उसने उसको उतारा, अपने सिरहाने रखा और एक चादर ले रखी थी, उस चादर को बिछाया और बिछा करके उस पर लेटा और लेट करके उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाई और ये उसके ज़ुबान पर आते ही, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा उसके ज़ुबान पर आते ही उसकी रूह उसके बदन से परवाज़ कर गई, दुनिया से चला गई। फरीदुद्दीन अत्तार ने जब देखा, ये मंजर देखा कि इस फ़कीर ने तो अजीब व गरीब मामला हमारे सामने पेश कर दिया और इसकी तो अजीब व गरीब मौत हुई है, तो फरीदुद्दीन अत्तार ने इतना इबरत हासिल किया, इतनी नसीहत हासिल की और आपको इतना दर्स इबरत हासिल हुआ कि फ़ौरन आपने सब कुछ छोड़ करके अल्लाह की इबादत में अपने आप को लगाया, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए और अल्लाह की इताअत में आप लग गए। आखिरत की फ़िक्र आपके ऊपर सवार हो गई। इसलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम सब को भी दुनिया के अंदर देख रहे हैं, हमारे और आपके सामने जनाजे उठ रहे हैं, लोगों की सांसें बंद हो रही हैं, हम और आप अपने कांधों पर जनाजों को उठा रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, ये इबरत की बातें हैं, हम सब को इबरत हासिल करना चाहिए। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने, कभी गौर से भी है देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब है सूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, उसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यही था तो सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही धुन है तुझको रहूं सबसे बाला, वो जीनत निराली और फैशन निराला,
तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया इबरत की जगह है, ये इबरत की जगह है। हम और आप देख रहे हैं जिन बड़े बड़े बिल्डिंगों में, जिन बड़े बड़े मकानों में कल लोग रहा करते थे, आज वो अपनी बड़ी बड़ी मकानों को खाली करके इस दुनिया से जा रहे हैं। जाने का सिलसिला लगा हुआ है। हमारे और आपकी भी, हमारे और आपके सामने भी ये सिलसिला है। हमारी और आपकी भी आंखें आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी। हमको भी और आपको भी एक वक्त आएगा कि लोग कांधे पर सवार करके कब्रिस्तान के हवाले कर देंगे। सही बात ये है मेरे दोस्तों, हमारी सच्ची और सही ज़िंदगी ये है कि हम और आप अपनी सही ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को सही रुख देने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारें। एक अल्लाह वाले का अजीब वाक़या लिखा हुआ है। 80 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा है। किसी शख्स ने पूछ लिया कि बड़े मियाँ आपकी उम्र कितनी होगी, बड़े मियाँ आपकी उम्र कितनी होगी? तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि मेरी उम्र 15 साल की होगी, मेरी उम्र 15 साल की होगी। पूछने वाले ने कहा कि आप मजाक फरमा रहे, आपकी उम्र इतनी लंबी है, 80 साल के आप हैं और आप कह रहे 15 साल हमारी उम्र है। उस बड़े मियाँ ने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं और कहा कि देखो, याद रखो, असल ज़िंदगी तो वो है जो मैंने अल्लाह की इबादत में गुजारी है, अल्लाह के हुक्मों को मान करके गुजारा है। अपनी ज़िंदगी का 15 साल मैंने अल्लाह की इबादत में गुजारा, अल्लाह की इताअत में गुजारा। वो ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी हमारी सच्ची ज़िंदगी है। और बकिया जो हमारी ज़िंदगी है 65 साल की ज़िंदगी, वो हमारे लिए सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी नहीं है, वो लग़्व है, बेकार है। याद रखो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमको जो आपको ज़िंदगी दी है, हम और आप उस ज़िंदगी की कदर करें, उस ज़िंदगी को गनीमत समझें, उस ज़िंदगी को गनीमत समझें। अल्लाह की इबादत करके इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारें, इस दुनिया से जाएं। एक मर्तबा चंद नौजवानों की जमात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, सबसे ज़्यादा अक्लमंद लोग कौन हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अक्लमंद लोग वो हैं जो मौत को याद करते हैं, जो मौत को याद करते हैं, मौत की तैयारी करते हैं, मौत के बाद वाली ज़िंदगी की तैयारी जो लोग करते हैं वही लोग अक्लमंद हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया ये डिग्री हासिल करने वाला अक्लमंद है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाला अक्लमंद है, और ये फला फला काम करने वाला अक्लमंद है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को याद करता है, मौत की बाद वाली ज़िंदगी की तैयारी करता है, वो सही मानों में अक्लमंद इंसान है। अल्लाह हम सबको मौत की बाद वाली ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, सही फिक्र नसीब फरमाए, सही समझ नसीब फरमाए। जैसा कि मैंने शुरू में ऐलान किया था, कहा था कि आज हम और आप जो बैठे हैं एक दुआया प्रोग्राम है, दुआ की गरज से हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। चंद दिन पहले मोहम्मद वैस भाई जो हमारे दरमियान हुआ करते थे, हमारे साथ रहा करते थे, मुमताज़ भाई उनके बहुत करीबी दोस्त, बहुत दिनों तक उनके साथ रहे और बड़ी उनसे मोहब्बत। मैंने शायद जब से आंखें खोली हैं, जब से मैंने होश संभाला है, जभी से मैं इन दोनों को एक साथ रहते हुए देखता हूँ, और जभी से मैंने दोनों को एक साथ बराबर रहते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, चलते फिरते देखा है। दोस्तों याद रखिए, हम और आप इस दुनिया के अंदर रहते हैं, जाने वाला चला जाता है, लेकिन जो लोग बाकी रहते हैं उनके ऊपर कुछ हुकूक होते हैं कि जाने वालों को याद करें, जाने वालों के लिए कुछ इसाले सवाब करें। उसी गरज से हम और आप बैठे हुए हैं मोहम्मद वैस भाई के इसाले सवाब के लिए। इसीलिए मैंने कुरान पाक की वो सूरतें पढ़ी हैं, सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ा है। इसी दुआ की गरज से हमारी और आपकी हाजिरी हुई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके रूह को सुकून अता फरमाए। चलते चलते एक गुजारिश मैं ज़रूर करूँगा कि अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए हम और आप किसी दिन और तारीख की तारीफ न करें, इसाले सवाब करें, उनके नाम पे गरीबों को खिलाए पिलाए, उनके नाम पे खर्च करें,
غریبوں کو کپڑے پہنائیں، مسکینوں پہ خرچ کریں، لیکن میرے عزیز دوستو بغیر دن کی تعین کے، بغیر تاریخ کی تعین کے کوئی دن تاریخ متعین نہ کیا جائے، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، 1 ہو، 2 ہو، 5 ہو، 7 ہو، بغیر کسی تعین کے ہم اور آپ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے روح کو سکون عطا فرمائے۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ 2 بوند ہی کافی ہے، اگر کچھ اثر کرے تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔